بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کو کہتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے وہی آپ کا بت ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کے اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اس کی برائیوں سمیت ہی قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسکراہٹوں کے پھول بانٹنے والوں کے اپنے لب خاردار کانٹوں سے لہو لہان ہوتے ہیں۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جس کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ اعمال کا صفر سے ضرب کھانا۔ اچھے اعمال کا نتیجہ صفر سے ضرب تب کھاتا ہے جب عمل اور نیت میں تضاد ہو۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں اور اعمال میں مناسبت پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پریشان، غمگین اور رنجیدہ ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں، پہلا دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی حرص، دوسرا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں کوتاہی۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہونے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ چل بھی پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا، اور اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعد والے مراحل اس سے آسان ہو جائیں گے، اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ دشوار ہوں گے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر کبھی دیکھا ہے، قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے، اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ تھوڑا سا فرق، اگر اندھیرے میں سایہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو زیادہ روشنی میں بھی ساتھ نہیں رہتا۔ فرق تھوڑا سا ہے، غریبی میں لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیری میں ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم
खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका ये है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। एक दिए की मानत है, न जाने कब हवा का झोंका आए और बुझ जाए। जी हाँ, ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं कि किस वक्त और कब सब कुछ फना हो जाए। लिहाजा हर वक्त अल्लाह से डरते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद। जल्ल जलालुहू के साथ किए गए किसी मामले में खसारा नहीं, फिर वो सदका हो या खैरात, तिजारत हो या मोहब्बत, राज़ो नियाज हो या दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बड़ा हसीन मौका देती हैं अल्लाह से मिलने का और बातें करने का। इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को हमेशा खालिस और मजबूत रखें, क्योंकि ये रिश्ता ही कामयाबी का ज़ामन है। हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया हसनतुम व फिल आखिराति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अज़ाब से तुम परेशानी समझ रहे हो सकता है किसी अच्छे वक्त का आगाज़ हो। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में गिराए गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये नए सफ़र का आगाज़ है, पैगम्बरी का सफ़र, बादशाहत का सफ़र। जहाँ एक दौर ख़त्म होता है वहीं से दूसरा दौर शुरू भी होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तुम पर मुश्किलात का इजाफ़ा हो जाए तो इस्तग़फ़ार की मिक़दार को बढ़ा दो। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु में हर कदम फूंक फूंक के रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि लिखें आप, लेकिन आपका लिखा हुआ आपकी औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तक़बिल की खातिर खुद को अल्लाह की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। दुआ क्या है? कुरान की तिलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़याम में जो भी फेज़ चल रहा है, इस फेज़ तक आपको अल्लाह ताला लाया है, आप खुद नहीं आ गए। अल्लाह ताला ने आप पर मुश्किलें भी डाली और आसानियाँ भी, ताकि आप शुक्र और सब्र दोनों के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर। ईमान इंसान को मजबूत बनाता है और गैर अल्लाह पर एतकाद इंसान को कमज़ोर करता है। शर खुद फैल जाता है, लेकिन खैर फैलाने के लिए मेहनत करना। कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। चीनी और नमक को मिक्स करके चुंटियों के आगे डाला जाए तो वो चीनी ले लेंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप अपने लिए वही चुनें जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना। मोहब्बत क्या है? वो रब करीम दिन रात हमारे गुनाह और नाफरमानियाँ देखता रहता है, फिर भी वो हमारा पर्दा रखता है और हमारा रिज़्क़ भी बंद नहीं करता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। सुभान अल्लाह। ज़िद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। ज़िंदगी लचक मांगती है, और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की बात करे वो हमेशा बेसुरान। खोलो और तूफ़ान नूह का वाक़या पढ़ो। अगर वली हाजत रवा होते तो नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा लेते और तूफ़ान को रोक लेते। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए अजाब के लिए तो कोई रोक नहीं सकता सिवाय तौबा। रिश्तों में ज़िद और मुकाबला आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं। बस रिश्ता मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं, ना बाप का जनाजा, मगर सुबह शाम गालियाँ उलमा को देते हैं। जिसके पास जो होता है इसने वही तकसीम करना है, इसलिए लोगों के रवैयों पर हैरान होना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं कि सबकी झोलियाँ प्यार, खुलूस, अपनायत और बेगर्जी जैसे मोतियों से भरी हों। इसलिए जहाँ जो मिले समझ लो वहाँ देने वाले के पास देने के लिए अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, इससे बेहतर और भी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना, सामने वाले की हद देखना, तो वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकते। मूसा अलैहिस्सलाम गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। असल ताकत और क़ुव्वत की मालिक अल्लाह ही की ज़ात है। जब तुम किसी से ताल्लुक़ बनाओ तो ये याद रखना, अगर तुम ताल्लुक़ की किताब में पहले सफ़े पर लफ्ज़ एहसास, ईमानदारी और बर्दाश्त तहरीर नहीं करोगे तो फिर आखिरी सफ़े पर जुदाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना भूल जाते हैं। दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा, और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल का दरवाज़ा खुलता है जो कभी बंद नहीं। हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो कर दे, वो तकलीफ़ नहीं नेमत है, और जो नेमत हमें अल्लाह से गाफिल करे वो नेमत नहीं अजाब है। अल्लाह हमें अपने साया रहमत में रखे, आमीन या रब्बुल। हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं, और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह दिलों को आबाद कर दे। बुजुर्ग से पूछा गया कि रहम और करम में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया जो तलब पे मिल जाए वो रहम है, और जो बग़ैर तलब के मिल जाए वो करम है। दुआ है अल्लाह करीम हम सब को अपने रहम और करम से नवाज दे, आमीन। सादी ने फरमाया रोए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अजियत, फ़रेब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। धूप में 8 घंटे मजदूरी कर सकता है, लेकिन पंखे के नीचे खड़े होकर 2 रकअत नमाज नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है
रूह कमज़ोर है। ऐसे इतनी शिकायतें मत किया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं। लोग जब आपसे बात कर रहे हों तो उनकी बात मत रोकें, वालिदैन, बच्चा, गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा है। वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो को मत देखिए, ये देखिए कि ये क्या काम करती है और चलते रहिए जैसा कि ये हमेशा चलती रहती है। ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह, ना वज़ीर हूँ, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इसे सल्तनत का बनाने से पहले कभी किसी के चेहरे को मत देख, बल्कि इसके अखलाक और चाहत को देख, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक ज़ख्मों की PhD डॉक्टर साहब के वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने एक आलिम दीन से कहा कि आपने जनाजा पढ़ाना है। जनाजा के बाद डॉक्टर ज़ार-ए-क़ुतार रोना शुरू कर दिया। लोगों ने इसे तसल्ली दी कि इस तरह का सदमा हर आदमी को पेश आता है, मगर वो मुसलसल रोता रहा। बिलाखिर आलिम दीन आगे बढ़कर पूछा कि आखिर वजह क्या है, कितना रो रहे हैं? मैं तो इस बात पर रो रहा हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे इतनी दुनियावी तालीम दिलवाई कि मैं PhD डॉक्टर बन गया, मगर मुझे दीन से इतना बेबहरा रखा। मेरे वालिद की मैयत मेरे सामने पड़ी थी और मुझे नमाज जनाजा भी नहीं आती थी। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत कहा है, यानी तुम्हारी माँ। से नीचे की मोहब्बत और नाक से ऊपर की अनाएं दोनों ही जलालत का बाइस। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे हैं, दाल दुनिया, शीन शैतान, मीम माल और नून। बार बार करो मगर भरोसा सिर्फ एक। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं। आँखों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल ज़िंदगी में हो तो कफन में चैन। दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद। दुआ कोई भी रद्द नहीं होती, लोग इंतज़ार नहीं करते। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। टूटी कलम और दूसरों से जलन हमें अपनी किस्मत लिखने नहीं देती। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। ऐ खुदा तू सब्र इस्तिक़लाल दे, गफलतों पे मेरी पर्दा डाल दे, तू अता कर सजदा रेज़ी है खुदा, शुक्र के सांचे में मुझको ढाल दे, आमीन। खुदा भूल चुका, ज़िंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा नमाज फजर पढ़ते हो? बोला आँख नहीं। हर आदमी अपना दरख्त अलग अलग उगाना चाहता है, यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं हो पाता। लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते बल्कि ताल्लुक ही तोड़ लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ ये है कि यहाँ गुनाह के मतलाशी को गुनाह और फ़ज़ल के मतलाशी को फ़ज़ल मिलता है। जब हम ये पूछ रहे होते हैं आज खाने में क्या है, इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं आज खाने को कुछ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अच्छे अखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं होगी, और अल्लाह ताला बेहया बदज़ुबान से नफ़रत करता है। जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। अल्लाह देखता है जब तुम सजदे में तड़पते हो, अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। तहज्जुद, अल्लाह ताला को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते भी थक जाते हो। अल्लाह को हर इस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी नाउम्मीद नहीं होने देता। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। रिश्ते और ताल्लुक एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत होती है। बेशक ज़ुबान जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जो आपके आबाओ अजदाद और माँ की तरबियत को वाज़ा करती है। धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर रखें। हमारा एक दूसरे के लिए दुआ मांगना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। दिल से निकली हुई दुआ तकदीर बदल देती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे और ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सुकून चाहिए तो ज़रा रात की तन्हाई में दिल बनाने वाले से दिल की बातें करके देखें।
بے شک راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط الفاظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرے۔